Now, to convert improper fractions means numerator is greater than denominator, into mixed fractions. Mixed fractions means it will have a whole number and it will have a proper fraction. Okay, it will have a whole number and a proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहता है. So how do we do it? We will do. Supposing your example, you have been given 11 by 3. 11 by 3 has to be converted into a mixed fraction. So we will divide 11 by 3. This 3 is your divisor. Okay. This is called a divisor. Now when you divide 11 by 3, 3 3s are 9 and the remainder is 2. Remainder you have got as 2. Now what you have to remember is Q R by D, in which Q is your quotient, D is your divisor and R is your remainder. So now what is the quotient? Put the quotient as, we have got the quotient to be 3. So in place of quotient write 3. What is the remainder? We have got the remainder as 2. Put the remainder as 2 upon divisor is 3. So 3 2 by 3. Now if you want to convert this mixed fraction into improper, 3 into 3 9, 9 plus 2 11, 11 by 3 is your answer. So this is how you will confirm your answer also. Next, convert the improper fraction 6 by 5. Now 6 by 5 has to be converted into a mixed fraction. So how do we do? We will divide 6 by 5. 5 ones are 5 minus remainder is 1. So this is your remainder, this is your quotient, and this is your divisor D. Okay, so what you will do, you will just put it in Q R upon D. In this case, what is your Q? Q is 1. What is your remainder? It is 1. And what is your divisor? It is 5. So this is your mixed fraction. Convert this into improper. 5 into 1 plus 1 by 5. 5 into 1. अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है ना, 5 into 1 5 प्लस ये जो ऊपर वाला 1 है ये होल बाय योर डिनोमिनेटर 5. So ये आ गया आपका 6 by 5. So this is how you will convert. Okay. So these are few examples which you will do. Express the following mixed fractions as improper fractions. 1 5 upon 7. So 7 into 1 7 plus 5 divided by 7. This is, I have done it for you. पहले खुद try कीजिए फिर देखिए आंसर क्या है. Convert the following improper fractions into mixed fractions. कुछ नहीं, आपको बस 13 by 7 में आपको ये करना है, आपको डिवाइड करना है 7 को 13 से. ठीक है. सेवन वन ज़ा 7 माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा 6. ठीक है. तो आपका फॉर्मूला क्या है? Q रिमाइंडर बाय डिवाइजर. Q यहाँ पे आपका क्या है? क्वोशंट है. क्वोशंट कितना है आपका? 1 है. सो आप यहाँ पर लिखेंगे 1. रिमाइंडर क्या है? 6 है. अपॉन डिवाइजर क्या है? 7. सो अपॉन 7. ठीक है. आपका आंसर सही है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे? 7 into 1 plus 6 by whole this thing by 7. 7 1 the 7 plus 6 13 by 7 is your answer. This is how you have to do this exercise also students. अगर मैं एक एक करके सॉल्व करने लगी तो बहुत टाइम लगेगा. So please do it on your own. Any doubts let me know in the comment section. Okay. Now next
कंपेयरिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस, दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके लिए कुछ रूल्स है. टू कंपेयर मिक्स्ड फ्रैक्शंस फॉलो द रूल्स गिवन बिलो. द मिक्स्ड फ्रैक्शन which has a larger whole number will be greater. जिस मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. अब अगर दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस में सेम होल नंबर आ गया तो the larger mixed fraction has a larger fractional part. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. कंपेयर 4 1/3 एंड 2 1/3. अब देखिए यहाँ पर 4 1/3 एंड 2 1/3 में होल नंबर कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है और आपका बड़ा है 2 से. सो सिंस 4 इज ग्रेटर देन 2 इसलिए ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपका बड़ा हो गया. अब बी एग्जाम्पल में 5 2/3 एंड 5 1/6 में दोनों ही होल नंबर सेम हो गए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंस दीज टू आर द सेम तो हमें ये 2/3 फ्रैक्शन को कंपेयर करना है 1/6 फ्रैक्शन के साथ कौन सा बड़ा है. अब इनको ऐसे इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 3 एंड 6 का. ठीक है, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या है बच्चों? LCM of 3 and 6 is again 6 only. So what we have to do? We have to convert these two fractions which are unlike. Why they are unlike? Because the denominators are different. One has got denominator 3 and the other has got denominator 6. So ये 3 and ये 6 को दोनों को हमें LCM जो है हमारा आया 2 into 3 6 आया. यहाँ पे इसको सेम करना है. दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम 2/3 को इज इक्वल टू सम न्यूमरेटर बाय 6 करना है. तो 3 को 6 करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 में 2 मल्टीप्लाई करना है. तो वही 2 को हमें इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये न्यूमरेटर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4. तो ये 2/3 हो गया आपका 4/6. सिमिलरली ये जो 1/6 है, यहाँ पे जो 1/6 वाला फ्रैक्शन है इसको अभी इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 1/6 एंड 4/6 जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कंपेयर करना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है. 4 बड़ा है तो 4/6 फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है. इसीलिए हम अभी क्योंकि यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे 5 2/3 एंड 5 1/6 लेकिन दोनों के होल नंबर सेम थे तो हमने कंपेयर किया 2/3 फ्रैक्शन एंड 1/6 फ्रैक्शन के साथ. एंड क्योंकि हमने इसको कंपेयर करने के बाद ये मिला कि हमें ये जो 2/3 था ये हो गया आपका 4/6. ठीक है, ये आपका ग्रेटर हुआ 1/6 से. So, इसीलिए ये वाला फ्रैक्शन 5 2/3 इज ग्रेटर देन योर 5 1/6. ठीक है, so this is your final answer. Okay, which is greater 5 1/5 or 6 1/3? Now let us compare the whole numbers of both the fractions. अब यहाँ पे देखेंगे 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे. दोनों अलग है, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है. इसीलिए ये वाला फ्रैक्शन आपका ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 8.8 बेस्ड ऑन दिस. Fill in the correct symbol greater than, less than or equal to. 2 5/9 and 1 5/10 में होल नंबर्स देखिए 2 एंड 1 कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, इसलिए दिस फ्रैक्शन इज बिगर. 20/25 एंड 1 3/25. यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 है. ये इम्प्रॉपर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये आपको मैंने पढ़ाया था तो ये बन जाएगा आपका 28/25. अब यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स 25 25 हो गए तो कौन सा बड़ा है न्यूमरेटर्स में? 28 या 20? 28. इसीलिए दिस फ्रैक्शन इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 20/25. 3/8 एंड 2 11/16. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इसको I have solved this for you students. You can go through this, okay? Otherwise it will take a lot of time to complete the video. D also has been done for you. Please go through it. Now compare the pairs of fractions using greater than, less than and equal to. Same ऐसे ही आप
जैसे मैंने समझाया था उस बेसिस पे इसको भी करेंगे. Okay, so with this we come to the end of your chapter. If you have any doubts, let me know in the comment section. I will be more than happy to clear it. Like, share and subscribe, students, and all the best. Thank you.